This is one of the schools which the walls have been painted by the Wall Art Project. Okay, it started in 2006 by a group of Japanese people in Bihar. And they found that the number of students increased when they went and painted the schools. The first year they raised some funds for the school building. Okay, then they invited Rajesh Vangad from Ganjad to Bihar. And then he invited the Japanese to come to Ganjad. So in 2012 they came to Ganjad and they painted first 2 schools, one where we turned on the road and then the ashram shala. They painted the walls because in the lean agricultural months they take away the students, okay, to help them in the fields. And there's this Bapu who was a school in the ashram shala, and he said, let's try to change the classroom, make the children feel proud of their school. And they said, wow, these people are coming and doing something for us, so it must be interesting. So then the number of students started increasing, and they also got to learn more about their culture, surrounded by these pictures. Japanese people also painted other classrooms when you're going to the other school and seeing that. Okay, so this is the basic thing. Of course, as you can see, this is the chowk. Here's the name of the artist who has done this particular classroom, Rajesh Chaitya Vangad. That is again the Vagya, the totem pole. As you can see, we're not going to explain the chowk again. You can see the similarity and the symbolism. Here is the Tarpa chowk. Should we pan it or stop it? Okay. As you can see, the men and women dancing. And what is important is how they portray. They know where the river water starts, has to start from a rock. Okay, they show the crab, they show you all the marine creatures with their observation. Then of course you have the agriculture in the fields. Yes, ploughing, they're still using the traditional wooden plough. Okay, and there's your rice grains. Take the picture for her, she was painting it yesterday with the peacock. Then you have your Vagya again. And then the story continues. It's a story of water. Okay. And here they are, of course, harvesting the paddy. After they plant it, they transplant it, and they let all the living creatures live in it. Okay? So you can see the ants, you can see maybe insects, lizards, crabs, worms. And then we come this side where he talks about, he shows you the mountain. Correct? The birds flying, the Savra birds are mythical birds, religious birds. There's a scene of threshing, harvesting there. There's a Khalya Dev, again it's a religious puja which has been covered. Then you have your potter here with the potter's wheel. All aspects of their life he has tried to show. Their house, of course, right? The weaving, they do the basket weaving. And as you can see, these mud houses have been built by the wasp. There's a story in their creation, Ganga Gauri and this one, how they use the mud from this to create the earth, because it was only water to start with. The different positions, figures. Okay, very clearly. Here again you have the sun and the moon. Most of it is maintained. I took screenshots of all the paintings thinking they might have been destroyed. They still put it. I'll just share this. This is the artist Rajesh Chaitya Vangad to the group for छोटे घर कुल सगळ्यांनी गायचं हा बोला छोटे घर कुल
अप्पा कशी मांडली मी कोपऱ्यात चूल, अप्पा कशी मांडली मी कोपऱ्यात चूल, अप्पा कसा केला मी पातेल्याभर भात, अप्पा कसा केला मी पातेल्याभर भात. जिला परिषद अंडर आता है, झड़पी अंडर बोलते हैं उसको. और ये जो आश्रम स्कूल है वो ट्राइबल डेवलपमेंट के अंदर आता है. यहाँ पे बच्चे लोग, सर ने बोला कि रेसिडेंशियल रहते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड द ग्रांट फॉर इट. एंड अदर जो बच्चे आते हैं वो 3 किलोमीटर से के बिटवीन रहते हैं, सो दे इजीली ट्रैवल टू कम टू द स्कूल. बहुत कम रहते हैं तो आते तो, लेकिन वो जब छोड़ देते हैं बीच में स्कूल तो वो आते ही नहीं वापस, क्योंकि यहाँ के बच्चे एक बार स्कूल से निकल गए तो वो स्कूल आने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी. उनको लाना पड़ता है. कितनी बार हम लोग कितनी बार जाते हैं लेने के लिए उनको, विजिट देते हैं. फिर कितनी बार विजिट देते हैं, क्यों नहीं आता है. तो फिर समझ में आता है कि उनके माता पिता कहीं गए हैं तो वहाँ उनको लेके गए हैं, तो वहाँ तो उधर स्कूल का कोई सुविधा नहीं है. वहाँ स्कूल की सुविधा रहती है लेकिन वो लोग जाते नहीं. उनका मन अभी भटक जाता है, स्कूल से बाहर निकल जाता है, तो फिर वो उधर ही रह जाते हैं काम करने के लिए. फिर उधर ही काम शुरू कर देते हैं. या वीट भट्टी पे काम देता है तो को छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. तो उधर उनका काम अगर उसमें, तो फिर शिक्षा से उसका ध्यान अलग लेवल पे चला जाता है. मतलब वो कुछ काम में आता जाता है तो काम करने में उसका ध्यान चला जाए, तो शिक्षा करने के उसको नहीं रहते. कितनी बार लाए भी हम तो निकल जाते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं. वे हमारे जो आश्रम के बच्चे रहते हैं ना, इधर रहते हैं, तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है. कभी आश्रम के भी बच्चे वो जो रहते हैं ना, उनके भी माँ बाप जाते हैं उधर, तो वो लोग क्या करते हैं, इधर छोड़ के जाते हैं बच्चों को. तो इधर वो रहते हैं अच्छे से. लेकिन अगर कोई ऐसा कोई 1-2% ऐसा रहता है कि उनके साथ चले जाते हैं कभी, तो उनको क्या लगता है इधर अच्छा है, वो पढ़ाई करने से इधर अच्छा रहता है, उनको थोड़ा माहौल वो अच्छा लगता है उनको. लेकिन वो कहीं ऐसे 1-2% रहता है. ऐसे आश्रम के जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा नहीं जाते. हम लोग फिर लेके आते हैं उनको. फिर उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो कभी महीने में, कभी 15 दिन में, क्या 2-3 महीने में आ जाते हैं उनको मिलने के लिए. फिर मिल के आते हैं. अगर कोई हमसे उनका कोई त्यौहार रहता है तो उस समय उधर आते हैं इधर, तो उनको साथ में लेके जाते हैं फिर 2-4 दिन. मैडम ऐसा रहता है ना, इधर क्या होता है, यहाँ जो है ना, यह है ना कि पहली से 10वीं तक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले में ये स्कूल में डालने का चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या करता है, बाहर जो स्कूल है 7वीं तक है, समझो 7 तक है, 8 तक है, तो फिर बाद में 7-8 के बाद उनको कई नंबर नहीं लगता, उनका वो ब्रेक हो जाता है.
कितने सारे बच्चे ऐसे है कि 8 तक ही का स्कूल है, फिर बाद में 9 में इधर आते हैं, तो हमारा तो 9 का स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है। हमारा इधर 9 में अभी तो कम से कम 90 तक थे, तो फिर उन लोगों को लेने के लिए हमारा भी प्रेशर आता है हमको भी। फिर वो लोग आते इधर, नहीं हम इनको इधर नहीं एडमिशन मिला, कहीं और 2-3 स्कूल घूम के लाते, फिर नहीं एडमिशन मिला तो वो लोग फिर घर पे ही रह जाते। फिर घर पे रहते हैं तो क्या करते हैं, फिर कुछ ये काम के जाते हैं, कोई वाड़े में जा काम नहीं आता है, उधर से भी काम मिल जाता है, तो फिर उनका तो स्कूल गए काम से। तो फिर ऐसे ही लोग क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि पहले से एडमिशन अगर इधर मिल जाता है तो अच्छा रहता है, फिर 10 तक को कोई उसका किधर जाने का टेंशन नहीं रहता है। इसीलिए हमारे स्कूल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है अभी पहले से लेकर कम से कम हर क्लास में आप आगे अभी भी जाके देखो 60 के ऊपर, अबव 60 है, 60 है, कोई क्लास में 70 है, कोई क्लास में 77 है, 80-90 तक कम से कम है। बैठने के लिए जगह 2 साल पहले तो 10th में हमारे तो 105 थे, 105। 1993 में या 1 नवंबर को ज्वाइन हुआ था, तब ये बिल्डिंग नहीं थी, इतना गांव भी बड़ा नहीं था, जंगल था सब। हम आते थे, पहली बार आया तो घबराता था मैं यार। तो वहाँ कारवी जो होती है ना, कारवी के आसपास के दीवार बनते थे, पतरे के ऊपर शेड बनता था, उसके नीचे हम पढ़ाते। ये स्कूल था वो दाभी पाड़ा के उधर कलमी पाड़ा के पास एक गांव है, उधर था ये स्कूल। एक ही घर में जो सेक्रेटरी थे उसके घर में वो पढ़ाया करते थे हम। बाद में ये जगह मिली, ये जगह पर पहले ये हॉल था, छोटा सा अभी 2 रूम ये हॉल था। पहले ऐसा हाँ, वो वहाँ किचन था, छोटा सा था। अभी वो ट्रस्ट ने बना दिया, मुंबई के ट्रस्ट ने। अभी बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है, सुविधाएं, हॉस्टल है, इधर लड़कों का हॉस्टल है, अभी बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पर ऊपर से पानी गिरता, ऊपर से बारिश गिरती थी, बच्चे लोगों को बहुत हाल होता था। और कोरोना भर अभी मैंने जो बताया था सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, लेकिन भूतकाल में वो क्रिया होती है तो वो कैसे होगी, वो क्रिया का परिवर्तन क्या होगा भूतकाल में जो हो गई है, कैसे होगी? संदेश गाड़ी आई थी, गाड़ी